સુપ્રભાત, ગુડ મોર્નિંગ. આગળનો ચેપ્ટર 9 આપણે પૂરો કર્યો, જેમાં આપણે વાત કરી હતી શકારની, કે જે દુષ્ટ અને દુર્જન છે, જેના બનેવી સત્તા પર હતો ત્યારે શકાર છે એને લોકોને ખૂબ કષ્ટ આપ્યા હતા, ખૂબ હેરાન કર્યા હતા. આપણો કથાનો નાયક જે છે ચારુદત્ત, એ ખૂબ સજ્જન, ખૂબ પ્રામાણિક વ્યક્તિ હતો. ચારુદત્ત છે એ સમય પલટો થતાં ધનવાનમાંથી ગરીબ અને ગરીબમાંથી ફરી રાજા બને છે. પણ એ વ્યક્તિ એના સ્વભાવ, એના ગુણોને આધારે એ દરેક સાથે ખૂબ સારું વર્તન કરે છે. એટલા માટે જ એની પાસે સત્તા આવવા છતાં એ દુષ્ટ શકારને કોઈ આકરી સજા ન કરતા, કોઈ હાનિ ન પહોંચાડતા એના પર ઉપકાર કરીને છોડી દે છે. એટલે સજ્જન વ્યક્તિ અને દુર્જન વ્યક્તિની અંદર રહેલો આ તફાવત છે એ આપણે પાઠના આધારે જોયો હતો. તમે લોકોએ હોમવર્કમાં ફેરબુક છે એ કમ્પ્લીટ કરી કાઢી હશે. તો આજે આપણે આગળ વધીએ આપણા ચેપ્ટર 10 દૌવારિકસ્ય સેવાનિષ્ઠા. રાજસ્થાનમાં જન્મેલા પરંતુ વિદ્યા અભ્યાસ માટે વારાણસીમાં ગયેલા અને ત્યાં જ કાયમી રીતે વસી ગયેલા પંડિત અંબિકાદત્ત વ્યાસનું આધુનિક સંસ્કૃત સાહિત્યકારોમાં વિશિષ્ટ સ્થાન છે. પંડિત અંબિકાદત્ત વ્યાસ, તેમનો જન્મ તો થયો હતો રાજસ્થાનમાં, પરંતુ એમણે શિક્ષણ મેળવવા માટે તેઓ વારાણસી જાય છે અને પછી હંમેશ માટે ત્યાં જ રહી જાય છે. આધુનિક સંસ્કૃત સાહિત્યકાર કાલિદાસ ને દંડી ને ભવભૂતિ, બાણભટ્ટ, આવા બધા આપણે આગળ નામ સાંભળ્યા છે, પાઠમાં આવે છે. તો એ બધા છે એ પ્રાચીન સમયના સાહિત્યકારો છે. આધુનિક સમયમાં જે સંસ્કૃત સાહિત્ય રચાય છે તેમાં અંબિકાદત્ત વ્યાસનું નામ છે એ વિશિષ્ટ, એટલે કે મોખરાનું છે. તેઓ પોતાના આધુનિક ઉપન્યાસ શિવરાજ વિજય નામની કૃતિથી જાણીતા બન્યા છે. સંસ્કૃતમાં રચાયેલી આ નવલકથા પ્રકારની કૃતિની શૈલી સરસ છતાં ગંભીર છે. તેનો કથા પ્રવાહ સતત વહેતો રહીને પાઠકને સાદ્યંત જકડી રાખે છે. શિવરાજ વિજય, જેમાં મરાઠાના રાજા છત્રપતિ શિવાજી, એમના વિશેના ઘણી બધી વાતો છે એ જોવા મળે છે. તો આધુનિક ઉપન્યાસ શિવરાજ વિજયના કારણે પંડિત અંબિકાદત્ત વ્યાસ છે જાણીતા બન્યા. આ કૃતિ જે છે એ નવલકથા છે, જેનો વિષય વસ્તુ છે એ આપણા માટે ઇતિહાસ છે, પણ કથા પ્રવાહ એટલો સુંદર અને સતત વહેતો રહે છે કે વાચક છે એ પણ કથાની સાથે જકડાઈ રહે છે, એને કથા પૂર્ણ કરવાનો આનંદ થાય છે. આ કૃતિમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે કરેલા અનેક સાહિત્યિક પરાક્રમોની કથા છે. આમાં સમયાંતરે એમણે મેળવેલા વિવિધ વિજયોની ગાથા પણ વણી લેવામાં આવી છે. શિવાજીએ મેળવેલા આ બધા વિજયોની પાછળ અનેક પરિબળો કાર્યરત હતા. ખાસ તો એમનો નાનામાં નાનો સેવક પણ પ્રામાણિક, નિષ્ઠાવાન અને સ્વામી ભક્ત હતો. આ વાતનું સમર્થન પ્રસ્તુત અંશ કરે છે.
એક સામાન્ય ફરજ બજાવતો દ્વાર રક્ષક કોઈ પણ લોભ, લાલચ કે પ્રલોભનથી પર રહીને પોતાના સ્વામીને વફાદાર રહે છે. આ દ્વાર રક્ષક આજે પણ પ્રામાણિકતાનો આદર્શ પૂરો પાડી રહ્યો છે. એટલે આજે શિવરાજ વિજય નામની કૃતિ છે. તેમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની સાહસના પરાક્રમોની કથા છે. કેમણે સમયાંતરે જુદા જુદા રાજાઓ સાથે, રજવાડાઓ સાથે યુદ્ધ કર્યા અને એમાં પોતે વિજય મેળવી. આ વિજય પાછળ ઘણા બધા પરિબળો કાર્યરત છે. એમની ન્યાય પ્રામાણિકતા, એમનો જુસ્સો, નિર્ભયતા, સાથે સાથે એમની રાજ્ય વ્યવસ્થા અને એના રાજ્યના સેવકો, કાર્યકર્તાઓ, મંત્રીઓથી માંડીને જાસૂસો સુધીના દરેક લોકો. તો એ દરેક લોકો કેવા હતા? પ્રામાણિક હતા. ગમે એટલા નાનામાં નાના હોદ્દા ઉપર હોય કે મોટા હોદ્દા ઉપર હોય, તો એ દરેક વ્યક્તિઓ છે પ્રામાણિક હતા, નિષ્ઠાવાન હતા અને સ્વામી ભક્ત હતા. પોતાના રાજાના માટે એ કોઈ પણ ભોગે રાજાને બચાવવા માટે, રાજ્યને બચાવવા માટે કાંઈ પણ કરી આપે એવા હતા. તો અહીં પણ આ અંશમાં પણ એક એવી જ કથા છે કે શિવાજી મહારાજ છે, એમનો એક દ્વારપાળ છે, દ્વાર રક્ષક એટલે કે વોચમેન છે, કે જે લોભ લાલચથી દૂર રહી પોતાના સ્વામી પ્રત્યે વફાદાર રહે છે. અને એના પ્રામાણિકતાની કથા છે એ અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓમાં સેવા ભાવના સાથે પ્રામાણિકતાના મૂલ્યોનું સિંચન થાય તે આ પાઠનો ઉદ્દેશ છે. પાઠમાં વપરાયેલા ક્રિયાપદોનો આધાર લઈને કર્તૃપદની સાથે વર્તમાન કાળના ક્રિયાપદોનો સમન્વય સાધતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની પુરુષ વ્યવસ્થાનો પણ અહીં અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આપણે વિદ્યાર્થીઓ તરીકે દરેકમાં સેવા ભાવના અને પ્રામાણિકતા જેવા મૂલ્યો છે એનું સિંચન થાય એ આ પાઠનો ઉદ્દેશ છે. કે આપણે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એની પ્રત્યે વફાદાર રહીએ અને હંમેશા દરેક માટેની સેવાની ભાવના છે આપણામાં કાયમ રહે. અહીંયા ક્રિયાપદો છે એ આપણને આપવામાં આવ્યા છે, પણ આપણે ઓલરેડી એ આગળ ભણી ગયા છીએ. પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ અને એમની સાથે વપરાતા પ્રત્યયો. અહીંયા વર્તમાન કાળના ક્રિયાપદો ખાસ પ્રયોજ્યા છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ એટલે આપણને એ ફાવે છે. બરાબર ને? આવડે છે ને દરેકને? યાદ છે કે ભૂલી ગયા? હે? ओके। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक अनोखे वीर पुत्र की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन था। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडेव ने की। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया, तो जीजा माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह
आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन 3 परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हों, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर करा जा सके। ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है, इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने यह समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कनक ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबाकर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपाकर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला किले में थे और सिद्दी जौहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले, आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5,000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देशपांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती करी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया
और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार की वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नवसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी, वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। આપણે પાઠનું વાંચન કરીએ। એકદા દૌવારી કહ ભવ્ય મૂર્તિમ સંન્યાસીમ
अपश्यत्। ततः तयोः एव वार्तालापः अभवत्। सन्यासी: कथम् अस्मान् सन्यासिनः अपि तिरस्करोषि? दौवारिकः: भगवन्, प्रणमामि, परन्तु स्वकीयं परिचयम् अदत्त्वा न कश्चित् प्रवेष्टुम् अर्हति। सन्यासी: सत्यं, क्षान्तः अयं ते अपराधः, किन्तु अद्य प्रभृति त्वं सन्यासिनः, पण्डितान्, ब्रह्मचारिणः, स्त्रियः, बालाः च न अवरोद्धुं शक्नोषि। दौवारिकः: सन्यासिन् बहु उक्तं वीरं, वयं दौवारिकाः ब्रह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामहे। सन्यासी: साधु, मार्गम् आदेशय, महाराज निकटे गन्तुम् इच्छामि। दौवारिकः: न शक्यं, प्रभाते महाराजस्य सन्ध्या उपासनाकाले प्रवेशं कर्तुम् अर्हसि, न तु रात्रौ। सन्यासी: किं कोऽपि रात्रौ न प्रविशति? दौवारिकः: आहूतान् परिचितान् च परित्यज्य न कोऽपि। विशेषतु भवादृशाः ये खलु तुम्बिधारकाः द्वारात् द्वारं भ्रमन्ति। सन्यासी: स्वगतः, सर्वथा सुयोग्यः अयं दौवारिकः, पुनः इमं परीक्षितुं प्रयतिष्ये। प्रकाशः: दौवारिक, अत्र आगच्छ, किमपि कथयितुम् इच्छामि। दौवारिक उपसृत्य: कथयतु भवान्। सन्यासी: त्वं तु दौवारिकः असि, कदापि धनिकः न भविष्यसि। वनेषु कन्दरासु च वयं विचरामः, सर्वं रसायनतत्त्वं जानीमः। दौवारिकः: भवतु नाम, अग्रे अग्रे। सन्यासी: यदि मम प्रवेशं त्वं न अवरोधयसि तर्हि तुभ्यं यथेष्टं रसायनं दास्यामि। तेन 50 तुलापरिमितं ताम्रं सुवर्णं भविष्यति। दौवारिकः: आहा कपटिं, विश्वासघातम् उपदिशसि। न वयं तादृशः। कथय, कः त्वं, कुतः आगच्छसि? अहं त्वां कस्यचित् गुप्तचरं मन्ये। दुर्गध्यक्षं निवेद्य त्वां दण्डिष्यामि। सः त्वां विज्ञाय यथोचितं करिष्यति। सन्यासी: परित्यज परित्यज, न अहं पुनः आगमिष्यामि, न एवं पुनः कथिष्यामि। दौवारिकः तत् विगण्य तं हस्तेन गृहीत्वा नयति।
सन्यासी प्रबलप्रकाशदीपस्य समीपे दौवारिक अपि जानासि मां? दौवारिक निपुणं निरीक्ष्य अयि आर्यः खलु भवान्? आर्य चन्दुम् अर्हति मा? सन्यासी तस्य पृष्ठे हस्तं विन्यस्य दौवारिक मया ते परीक्षा कृता, त्वं योग्यस्थाने नियुक्तः असि। उत्कोचाय अलोलुपाः त्वादृशाः प्रभूणां पुरस्कारभाजनं भवन्ति। अहं तौ प्रामाणिकतां प्रभुसन्निधौ कथयिष्ये। क्वत्र वर्तते श्रीमान्? किम् अनुतिष्ठति सम्प्रति सः?